اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات۔ تمام حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے ہے جو واحد الاحد ہے اور اس کی شان اللہ الصمد ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ خدا ساتویں آسمان پر ہے، پر ہم کہتے ہیں کہ خدا ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ خدا جس نے ہمارے سروں پر آسمان کا سائبان بنایا، وہ خدا جس نے ہمارے پاؤں کے نیچے زمین کا فرش بچھایا۔ یا خدایا ہم تجھے مفتح الابواب کہتے ہیں کہ تو بند دروازوں کو کھولنے والا ہے۔ یا خدایا ہم تجھے مسبب الاسباب کہتے ہیں کہ تو بہترین سبب پیدا کرنے والا ہے۔ میرے لاکھوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث جناب رسالت ماں بیان کی ہے، حسین و منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جناب رسالت ماں فرماتے ہیں جو کچھ میں رسول ہوں وہی کچھ حسین ہے، جو کچھ حسین ہے وہی کچھ میں رسول ہوں۔ جس کا میں رسول ہوں اس کا حسین ہے، جس کا حسین ہے اس کا میں محمد ہوں۔ تو عزیز کاران، جناب رسالت ماں مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو جناب رسالت ماں جب خطبے کے دوران امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا کے فرماتے ہیں کہ اے نمازیوں، اے اصحاب دیکھو، اے مسلمانوں دیکھو، ھذا حسین، یہ حسین ہے، فعرفو، اس کو پہچانو۔ پھر فرمایا جناب رسالت مآب نے کہ اس کی فضیلت کا اقرار کرو، جب اسے کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کی مدد کرو۔ جناب رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میں محمد سے پوچھو کہ حسین کتنی عظمت اور شان کا مالک ہے۔ فرمایا جناب امام حسین کی جد کے بارے میں کہ اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی، فرمایا اس کا نانا جنتی، اس کی نانی جنتی، اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا بھائی جنتی، اس کی بہن جنتی، اس کا بیٹا جنتی، اس کی بیٹی جنتی، اس کی اولاد جنتی، اور فرمایا اس کے چاہنے والے جنتی، اور اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ وجود ہے حسین و منی اور بقا ہے وانا من الحسین۔ جناب رسالت مآب سبب ہیں امام حسین کے وجود کے، اور امام حسین سبب ہیں رسالت مآب کی بقا کے۔ تو عزیز کاران، یوں سمجھ لیجئے کہ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم کے آخری سجدے تک ہے الحسین و منی، اور 10 محرم کے آخری سجدے سے لے کر تا قیامت تک ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے۔ آج جو کچھ بھی باقی ہے تو بوجہ حسین، دین باقی تو بوجہ حسین، نماز باقی تو بوجہ حسین، حیا باقی تو بوجہ حسین، نماز باقی تو بوجہ حسین، قرآن باقی تو بوجہ حسین، اذان باقی تو بوجہ حسین، ایمان باقی تو بوجہ حسین۔ ہر ذکر پہ چھا گیا ہے حسین۔ یہاں مجلس حسین میں توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے، تمام انبیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسول کا بھی ذکر ہوتا ہے، امام کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور مسائل کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں سے کوئی باہر جائے گی یا یہاں سے کوئی گزرے گا، کوئی پوچھے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو یہی جواب دیا جائے گا کہ مجلس حسین ہو رہی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ توحید کی مجلس ہو رہی ہے یا رسول کی مجلس ہو رہی ہے یا انبیاء کی مجلس ہو رہی ہے۔ تو عزیز کاران،
जनाब इमाम हुसैन की बहुत अजमत बहुत शान है। इमाम हुसैन की अजमत और शान के बारे में मैं क्या बताऊं कि वो इतनी अजमत और शान का मालिक है जिसके बारे में जनाब रिसालत माब बार बार ये हदीस बयान फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन मुझे है जग से प्यारा, हुसैन दुखियों का है सहारा। हुसैन मुझे है जग से प्यारा, हुसैन दुखियों का है सहारा। हुसैन का है आपके दिल पे डेरा, हुसैन का है मेरे दिल पे डेरा। हुसैन तेरा हुसैन मेरा। हुसैन आला है हर एक बशर से, हुसैन आला है हर एक बशर से, मोहताज उसका हर एक वली है। हुसैन सख्ती में है मोहम्मद, हुसैन नरमी में है अली। हुसैन सख्ती में है मोहम्मद, हुसैन नरमी में है अली। हुसैन आपको जवाल कोई नहीं, हुसैन जैसा कमाल कोई नहीं। मैंने देखा है पूरे जहां में, मैंने देखा है पूरे जहां में, हुसैन जैसी मिसाल कोई नहीं। हुसैन किसी एक मजहब और मसलक का मोहसिन नहीं, हुसैन कुल कायनात की इंसानियत का मोहसिन है, जिसमें 1.25 लाख अंबिया भी शामिल हैं, जिसमें 313 रसूल भी शामिल हैं, जिसमें 1040 असहाब भी शामिल हैं। हुसैन पूरी कुल कायनात का हुसैन है। तो अजीज कारन, जनाब इमाम हुसैन की ज़री मुबारक पर हर शब जुम्मा तमाम अंबिया जाके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी मेहनत बचाई। तो जनाब इमाम हुसैन शब जुम्मा की आखिरी निसफ हिस्से में बहन ज़ैनब की ज़री मुबारक पर जाके कहते हैं कि जनाब ज़ैनब से कि बहन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मेरी मिशन की बराबर की शरीक है। जो कुछ खुदा ने आले मोहम्मद को अता किया है उसका नाम फजैल है, जो कुछ उम्मत ने दिया है उसका नाम मसैब है। दुआ क्या करो ऐसे किसी की बेटियां यतीम ना हो जैसे हुसैन सखी की बेटी सकीना यतीम हुई है। अजीज कारन, 10 मुहर्रम के दिन सारे जान निसार सारे असहाब शहीद हो गए। सबसे पहले जनाब इमाम हुसैन के लाल 18 साल के जवान अली अकबर के सीने में बर्छी लगी। उसके बाद 13 साल के कासिम की लाश पामाल हो गई। मौला अब्बास के बाजू कलम हो गए। जनाब अली असगर मासूम उसकी शहादत हो गई। अकेले हुसैन रह गए थे जनाब बीबी ज़ैनब का सहारा। जनाब इमाम हुसैन जब खेमे में आखिरी विदा लिया, सर से लेकर पांव तक जख्मों से चूर थे। बहन को अपने छोटे बच्चों की वसीयत की, और जब मौला हुसैन पहले घोड़े पर सवार होने लगते थे ना, कहीं से कासिम सवार कराने के लिए आ जाते, कहीं से अकबर आ जाते, कहीं से गाजी आ जाते, कहीं से औल मोहम्मद। जब 10 मुहर्रम के दिन जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सवार होने लगे ना, कोई सवार करने वाला नहीं था। एक कांपता हुआ हाथ कोच में आया। जनाब इमाम हुसैन रो के फरमाते हैं, कौन है मुझे सवार करने वाली? जनाब ज़ैनब रो के कहती है, हुसैन भैया आपकी बहन ज़ैनब आपको सवार करने के लिए आई है। उस वक्त मौला हुसैन रो के फरमाते हैं कि बहन ज़ैनब, जब तेरे हाथ रस्सियों से पाबंद हो गए, सर पे रिदा ना होगी, जब तुम शाम की तरफ जाओगी तो तुझे कोई सवार करने वाला ना होगा। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब सवार होने लगे, कहा घोड़े से कि मुझे मैदान ले जा। वो अपनी जबान में कहता है, मौला जरा मेरे कदमों की तरफ तो देखिए, कैसे बर्दाश्त करेंगी? मोहम्मद, ये दुनिया का दस्तूर है कि जिस घर में एक जनाजा हो वो माँ बहन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आप ये बताएं, जिस घर में 71 जनाजा हो उस घर का क्या हाल होगा? रोने की भी पाबंदी है। जनाब इमाम हुसैन ने कहा, जुलजना मुझे मैदान ले जा। वो अपनी जबान में कहता है, मौला जरा मेरे कदमों की तरफ देखिए। जनाब हुसैन क्या देखते हैं कि एक 4 साल की मासूमा है
घोड़े की सुंबक को लिपटी हुई है, रो रो के कह रही है, घोड़ा मेरे बाबा को ना ले जा, जो सुबह से गया है वापस नहीं आया। मैं बाबा के सीने के सोने की आदी हूँ, मुझे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा को ले जाओगे मैं यतीम हो जाऊंगी। जनाब इमाम हुसैन बहन ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब मुझे मासूमा को उठा के दो। जब जनाब ज़ैनब ने मासूमा को उठा के दिया, बाबा के सीने की सोने की आदी थी ना, जब बाबा के सीने के साथ लगी मासूमा को नींद आ गई और जनाब ज़ैनब की सपुर्द किया। कहा जब ये जागी जहाँ जाए उसे जाने देना, जहाँ ये जाए उसे जाने देना, उसे मना नहीं करना। मोहम्मद रुलाती तो ये बात है, जब सकीना सोई थी तो बाबा का सीना था, जब उठी तो उसे बाबा का सीना ना मिला। फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ है? जनाब ज़ैनब ने कहा, तेरे बाबा मैदान गए हैं। कहा मैं अपने बाबा के पास जाती हूँ। कहा कैसे जाएगी? वहाँ तीरों के साथ तीर है, नेज़े के साथ नेज़ा है, घोड़े के साथ घोड़ा है, तलवार के साथ तलवारें है, वहाँ बहुत ज्यादा अश्किया है, लाखों की फौज है, कैसे बाबा के पास जाएगी? रो के कहती है, फूफी अम्मा आप मुझे इजाजत दीजिए, मेरे बाबा को अकेला मेरा बाबा है, अकेले मेरे बाबा को मारने वाले हैं, मैं अपने बाबा के पास जरूर जाऊंगी। जनाब ज़ैनब ने इजाजत दी। जनाब फिजा के साथ जब बीबी मासूमा गई तो वहाँ क्या हालत है? वहाँ पे हर तरफ से फौज ही फौज है। जनाब मासूमा रो के कहती है, बाबा कहाँ है? आपकी मासूमा आपको मिलने के लिए आई है। जनाब मासूमा ने एक अश्किया से पूछा, या शाह हर राय ताबी, ऐ बंदे खुदा बता मैं गरीब का बाबा कहाँ है? अब कैसे बर्दाश्त करोगी? उस जालिम ने मासूमा को बताने की बजाय तमाचे मारने शुरू कर दिए। जनाब मासूमा रो के कहती है, जालिम आप तो मार लिया है, अब तो बता मैं गरीब का बाबा कहाँ है? घोड़े की वफा देखिए जनाब इमाम हुसैन पे, ये मुसलमानों को देखिए, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है, किसी के पास कुछ नहीं है, वो गरम रेत मौला हुसैन के जख्मों पे फेंकता है। जनाब इमाम हुसैन के हर तरफ से तीरों की बारिश है। ज़ुलजना की वफा देखिए, हर तरफ से अपने जिस्म पे तीर लेता है। जब जनाबी सकीना की आवाज सुनी, कहा मौला मुश्किल बन गई है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी मासूमा बेटी को लेने जाता हूँ। कहा जनाब हुसैन ने कि ऐ ज़ुलजना क्या मुझसे ज्यादा भी कोई मुश्किल हो सकती है? कहा वो देखिए आपकी मासूमा तमाचे खा रही है, मैं आपकी बेटी को लेने के लिए जाता हूँ। जनाब इमाम हुसैन की बेटी को जब ज़ुलजना लेके आया, क्या हालत है हुसैन की? हर तरफ से जख्मों से खून जारी है, हर तरफ से तीर ही तीर पे वस्त है। जनाब इमाम हुसैन ने तीर निकाल के बेटी मासूमा को सीने पे सुलाने की कोशिश की। कहा बाबा तीर ना निकालो, मैं आपके सीने पे नहीं सोती। जनाब हुसैन ने तीर निकाल के अपनी मासूमा को सीने पे सुलाया। मोहम्मद मासूमा को नींद आ गई, इतने में शिमर अपनी उंगली पे खंजर फेरता हुआ आ गया। कहा हुसैन इतनी मुश्किल वक्त में बेटी को क्यों बुलाया है? मैं आपसे जरा ये सवाल करती हूँ, मुझे ये बताएं, क्या मुश्किल वक्त में बेटियों को बुलाया जाता है? बेटियां खुद ब खुद आ जाती है, बेटियों को बुलाया नहीं जाता। जनाब इमाम हुसैन से कहा शिमर मलून ने कि जल्दी करो सकीना को उठाओ। जनाब हुसैन रो के कहते हैं पहले भी तमाचे खा के आई है, मासूम है, अभी उठ जाएगी। रोने वाली हो जनाब मासूमा के चेहरे पर जनाब इमाम हुसैन के जब आंसू गिरे, बीबी तड़प के उठी, रो के कहती है बाबा बाबा हुसैन क्यों रो रही है? कहा कि बेटी तुम खैमे वापस चली जाओ। जब शिमर मलून को देखा, कहा ये कौन है? कहा यही तो है जिसने तुझे यतीम करना है।
बेटी खैमे वापस चली जा। होने वालियों, जनाब मासूमा को जनाब फिजा जब खैमे की तरफ लेके चली, जनाब फिजा का रुख खैमे की तरफ, जनाब मासूमा का रुख अपनी बाबा की तरफ, जनाबी मासूमा का रुख अपनी बाबा की तरफ। जब मौला हुसैन ने सजदे में सर रखा, जनाब इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा, उस जालिम ने पहली ज़रब चलाई। जनाब मासूमा जनाब फिजा को छोड़ के आके बाबा की गर्दन पे गर्दन रख दी।